morning to all my dear students. How are you all? I hope सब एकदम बढ़िया होंगे और सबने गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में बजट रिसिप्ट बजट पेमेंट्स तक का सारा पोर्शन रीड कर लिया. Right. So students, in our today's class, we have to go with the very new topic of this chapter, that is measures of government deficit. Basically, these are the measures of budget deficit. Okay, यहाँ पे budget deficit होना था. Now, let's just clarify the meaning of word deficit. Deficit का मतलब है कमी. जो भी problem आ रही है ना, जो भी budget में deficit का मतलब है excess of expenditure. So have a look on definition. Budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over the total estimated revenue. मेरा जो total estimated expenditure है, उससे जो ज्यादा मेरा ये जो expenditure है, ये revenue से जितना ज्यादा है, वो extra expenditure budgetary deficit है. Now have a look. When the government spends more than it collects, then it incurs a budgetary deficit. जब government की स्पेंडिंग गवर्नमेंट के कलेक्शन के कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे बजटरी डेफिसिट आ जाता है. नाउ वी हैव टू गो विद थ्री टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट. तीन बजट डेफिसिट हमें पढ़ने हैं. नंबर 1 इज रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 इज फिस्कल डेफिसिट एंड नंबर 3 इज प्राइमरी डेफिसिट. हैव अ लुक एट इट. रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल. एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट. मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सपोज 40 करोड़ है और मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स ओनली 35 करोड़ है, तो 5 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट फेस करूंगी. So it happens when revenue expenditure of government are more than revenue receipts of government. It is the difference between revenue expenditure and revenue receipts. It is signifying that government is unable to cover its routine expenditure from the revenue receipts. So have a look. Revenue deficit signifies that government's own revenue is insufficient to meet the expenses on normal functioning of government department and provisions for various services. Have a look on formula. Revenue deficit is equals to revenue expenditure minus revenue receipt. Revenue expenditure में से revenue receipt को minus कर दीजिए, you will get the revenue deficit. आगे देखिए. Implications of revenue deficit. What will be the adverse impact of revenue deficit on the economy? Number 1, it is indicating that our government is not capable of meeting its regular and recurring expenses. Right? Government जो upcoming budget बता रही है, उसमें government का ये indication है clear that it will be unable to cover the routine expenses from the routine receipts. Number 2. It implies that government is dis-saving. That is, government is using up saving of other sectors of the economy to finance its consumption expenditure. It means अगर ऐसा show हो रहा है that your revenue receipts are more than your revenue receipts are less than revenue expenditure, it simply means that excess of expenditure is covered up by using some other savings. Right? हमने दूसरे सेक्टर्स में जो पैसा सेव किया है, हम उसको यूज कर रहे हैं टू कवर अप द एक्सपेंडिचर. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट को इंप्लाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है. नेक्स्ट, it also implies that government has to make up this deficit from capital receipt, that is through borrowing or disinvestment. This means revenue deficit either leads to increase in liability in the form of borrowing or reduces the assets through disinvestment. This one is important as urgent reason question can be asked from this sentence. ये कह रहे हैं many a times to meet the extra revenue deficit, the government need to make some capital receipt, that is either government need to borrow money to cover up the expenditure, or many a times government also use the technique of this saving. Right? So when revenue deficit increases the burden on government, it means it is done in the expenditure is covered from borrowing, and when it reduces the assets of government, this means the government is covering up the revenue deficit by using the policy of disinvestment. Now have a look. Use of capital receipt for meeting extra consumption expenditure leads to an inflationary situation in the economy. Higher borrowing increases the future burden in terms of loan amount and interest payment, and increase in such interest burden will lead to increase in revenue expenditure in future. This will result in further rise in revenue deficit. समझिए बेटा इसको. अगर हमने ज्यादा revenue deficit फेस किया, उसको कवर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग कर लेती है, तो दो एडवर्स सिचुएशंस हो जाएंगी. नंबर 1, गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग कर रही है, यानी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर रही. इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एक्सपेंस अच्छा खासा बन रहा है, और जब गवर्नमेंट का इकोनॉमी में एक्सपेंस अच्छा है, इट मींस इट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन. Number 2,
अगर अभी करंट गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग कर रही है तो फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए लोन का बर्डन भी बनेगा, प्लस फ्यूचर गवर्नमेंट विल नीड टू पे मोर एंड मोर इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन भी बढ़ेगी। मोर इंटरेस्ट पेमेंट मींस मोर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर, जो वापस हो सकता है आपके लिए रेवेन्यू डेफिसिट लेके आ जाए। अब आगे देखिए, a high revenue deficit gives a warning signal to government to either curtail its revenue expenditure or increase its revenue receipt. गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग है कि या तो आप अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए या आप अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक्सेस बोरोइंग कर लेते हैं तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी आएगा और आपके लिए फ्यूचर में बर्डन क्रिएट होगा। तभी तो कहते हैं कि हमेशा उतना ही कंजप्शन करिए जितनी आपकी पॉसिबिलिटीज है, आपके पास जितनी इनकम लेवल आपका जो है, राइट, आपकी जो परचेजिंग पावर्स है, कहते हैं ना जितनी चादर उतना ही पैर पसार। तो जितना हमारे पास मनी है आउटफ्लो के लिए वो चेक कर लीजिए, उसको इनफ्लो से मैच कर लीजिए कि क्या इतना मनी मेरे पास इनफ्लो भी होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग अपना एक्सपेंडिचर कीजिए, अदरवाइज आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम है। अब कैसे रिड्यूस कर सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को? या तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर ले या फिर अपना गवर्नमेंट क्या कर ले, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को इंक्रीज कर दे किसी भी तरीके से, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू रिसिप्ट, ये दो ऑप्शंस अवेलेबल है। बट गवर्नमेंट करती क्या है, ये दोनों इतने इजी नहीं है। तो किया क्या जाता है, या तो बोरोइंग कर ली जाती है या डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया जाता है या डिस सेविंग कर ली जाती है। अब आपको पूछे व्हाट मेजर्स शुड बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये दो मेजर्स। आपको पूछे व्हाट मेजर्स आर एक्चुअली यूज्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये मेजर्स, ठीक है। तो क्या करना चाहिए और क्या हम एक्चुअली कर रहे हैं उसमें एक बड़ा डिफरेंस है, आप सबको ध्यान रखना है इस बात का। आगे देखिए, ये बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू फार साइटेड अप्रोच रेवेन्यू रिसिप्ट शुड ऑलवेज बी मोर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सो दैट सरप्लस कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हाउएवर इंडियन बजट इज फेसिंग रेवेन्यू डेफिसिट फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स। हमेशा हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा होनी चाहिए ताकि हम उस एक्स्ट्रा रिसिप्ट को यूज कर सके इकोनॉमी के लिए, बट एक्चुअली क्या चल रहा है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ही चल रहा है। नंबर 2, फिस्कल डेफिसिट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। This is the actual budgetary deficit. Actually गवर्नमेंट बजट में जो शॉर्टेज फेस कर रही है वो शॉर्टेज है फिस्कल डेफिसिट। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इम्बैलेंस है। देखिए ये क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज द एक्चुअल बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट। सपोज गवर्नमेंट ने अर्निंग्स वगैरह सब कुछ करके अदर देन बोरोइंग टोटल रिसिप्ट की 70,000 करोड़ और उसका एक्सपेंडिचर हो गया 90,000 करोड़। तो ये जो 20,000 करोड़ का एक्सपेंस उसने किया है ये कहां से किया होगा, बोरोइंग करके किया होगा। तो हमें फिस्कल डेफिसिट में ये बोरोइंग निकालनी, कैसे कैलकुलेट होगी, पहले तो ये देखिए क्या लिखा है। Fiscal deficit refers to excess of total expenditure over total receipts excluding borrowings during a given fiscal year. टोटल रिसिप्ट्स में आपको बोरोइंग वाली रिसिप्ट्स नहीं लेनी है, बोरोइंग वाली रिसिप्ट के अलावा आपकी टोटल जो भी रिसिप्ट्स है वो ले लीजिए और फिर चेक कर लीजिए इस रिसिप्ट से कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है आपका। तो हैव अ लुक ऑन फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग, क्योंकि हमें बोरोइंग ही निकालनी है। रिसिप्ट्स में बोरोइंग भी इंक्लूडेड होती है, बोरोइंग इज आल्सो वन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, बट वी वांट टू कैलकुलेट कि ये बोरोइंग हमें कितनी करनी पड़ रही है इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए। तो उसके लिए वी हैव टू टेक द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एंड वी नीड टू डिडक्ट द वैल्यू ऑफ टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम द एक्सपेंडिचर पार्ट। देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे नीचे, पहले तो ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, the extent of fiscal deficit is an indication of how far the government is spending beyond its means. गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है ये पता चलेगा आपको कब, जब आप फिस्कल डेफिसिट देखेंगे। अब देखिए टोटल रिसिप्ट्स में दो रिसिप्ट्स आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। हमें लेनी कौन सी है, अदर देन बोरोइंग। आती तो बहुत सारी है, हमें अदर देन बोरोइंग लेनी है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट मींस द रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट व्हिच एक्सक्लूड्स द गवर्नमेंट बोरोइंग।
क्या लिखा हुआ है देखिए, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूड्स ऑल द रिसिप्ट्स एक्सेप्ट द बोरोइंग, सो सच रिसिप्ट्स डू नॉट गिव राइज टू द डेब्ट, फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ लोन्स और प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। ये दोनों ही मेरी नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, ये दोनों ही बोरोइंग नहीं है, ठीक है। तो हमें तो एक्चुअली बोरोइंग वाले को चेकआउट करना है। जब आप फिस्कल डेफिसिट की कैलकुलेशन करेंगे तो एक्चुअली आपको बोरोइंग ही पता चलेगी। पहले इसके कुछ इंप्लीकेशंस देख लेते हैं। नंबर 1, डेट ट्रैप। ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है, इट मींस मोर बोरोइंग है। बोरोइंग रिक्वायरमेंट को इंडिकेट कर रही है, और बोरोइंग में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे नहीं करना पड़ता, आपको इंटरेस्ट भी रीपे करना है। तो इंटरेस्ट पेमेंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, धीरे धीरे आप विशियस साइकिल ऑफ डेफिसिट में फंसते चलेंगे। एक ऐसी इकोनॉमी जहां अर्निंग नहीं है, वो अगर ज्यादा से ज्यादा अपना बोरोइंग करती है, बोरोइंग करेगी तो क्या होगा, उसके ऊपर बोरोइंग का और इंटरेस्ट पेमेंट का दोनों का बर्डन आ जाएगा। अब जैसे ही ये बर्डन आ गया तो फ्यूचर जनरेशन पे वो बर्डन आएगा, वो अपनी सिचुएशन सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगी और डेब्ट ट्रैप में फंसती चली जाएगी। फिर अगर गवर्नमेंट मोर बोरोइंग कर रही है, किससे बोरो करेगी, आरबीआई से न्यू करेंसी प्रिंट करवाएगी। जैसे ही न्यू करेंसी प्रिंट करवाएगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ते ही इकोनॉमी में प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक बड़ा इंप्लीकेशन है इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट का। नेक्स्ट, फॉरेन डिपेंडेंस। अगर हमने फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो कर लिया तो हमारी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंस इंक्रीज हो जाएगी, विच इज अगेन नेगेटिव, एंड मोर बोरोइंग विल हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। फ्यूचर की गवर्नमेंट तो बोरोइंग रीपे करने में लग जाएगी, तो फ्यूचर की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स थोड़े से डाउन चले जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करे, तो आप बोरोइंग्स को अवॉइड कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि इकोनॉमी में इतना रेवेन्यू जनरेट हो कि गवर्नमेंट को बोरोइंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। ये देखिए कि क्या कह रहे हैं, fiscal deficit gives borrowing requirements of the government, so it must not be allowed to rise beyond manageable limits. The safe limit of fiscal deficit is considered to be 3% of GDP. Greater fiscal deficit implies greater borrowing by government, so a high fiscal deficit is inherently bad for the health of economy. ये कह रहे हैं fiscal deficit means borrowing. इतनी बोरोइंग तो कर सकते हैं जितनी हम रीपे कर सके, है ना, मैनेजेबल लिमिट्स में, बट कहीं इतनी ना कर लें जो हम रीपे नहीं कर पाए। एक सेफ लिमिट गवर्नमेंट को लगता है इज 3% ऑफ जीडीपी। मेरी इकोनॉमी की जितनी भी जीडीपी है उसके 3% तक अगर मेरी बोरोइंग है तो आई विल बी एबल टू मैनेज, उससे ज्यादा है तो मैनेजमेंट नहीं है। अब फिस्कल डेफिसिट के 3 फॉर्मूले देखें, अब कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग। अदर देन बोरोइंग लेनी है, बोरोइंग्स नहीं लेनी। नंबर 2, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है। क्या मैं इसको टोटल एक्सपेंडिचर ही कह सकती हूँ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग। तो कैपिटल रिसिप्ट में ही बोरोइंग आती है, हमने बोरोइंग को एक्सक्लूड कर दिया, तो मैं ये कह सकती हूँ दैट इट इज टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग। These two formulas are again very important. पहले इन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट निकाल दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट कर दो, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। इसमें ऐड कर दो कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग के अलावा वाली कैपिटल रिसिप्ट्स ले। तो ओवरऑल तरीका एक ही है कहीं से भी, बस ये वाला फॉर्मूला अलग है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से तो सेम ही कैलकुलेशंस होनी है, दिस वन इज डिफरेंट। काफी बार आपको रेवेन्यू डेफिसिट दे देंगे या फिस्कल डेफिसिट दे देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट दे देंगे, रेवेन्यू डेफिसिट की कैलकुलेशन करवा लेंगे। So at that time you must keep this formula in your mind. Fiscal deficit is equals to revenue deficit plus capital expenditure minus capital receipts excluding borrowings. यानी रेवेन्यू डेफिसिट पूरा ले लीजिए, दैट मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। उसमें ऐड कर दीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें से आपको माइनस करनी है द वैल्यू ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल बोरोइंग, जितना भी गवर्नमेंट बोरो कर रही है। अब आप कितना बोरो कर रहे हो ये कैसे पता चलेगा? आप अपना टोटल एक्सपेंस देखिए, उसमें से अपनी टोटल रिसिप्ट्स देख लीजिए। रिसिप्ट में मुझे एक रिसिप्ट को इग्नोर करना है, दैट इज बोरोइंग। बोरोइंग के अलावा जितनी भी रिसिप्ट आ रही है, सपोज मैं अपनी सारी अर्निंग ले लेती हूँ, मैं अर्निंग के अलावा कोई भी मेरे घर पे आ रहा है, मुझे ट्रांसफर पेमेंट देके जा रहा है, मैंने पैर छुए, प्रणाम किया, पैसे मिल गए, रक्षाबंधन में पैसे मिल गए, ऐसे सारी रिसिप्ट देख ली।
अब ये सब मिला के मेरी अर्निंग और ये सारी रिसिप्ट्स मिला के मेरे पास टोटल आ रहा है 40,000 और मेरा एक्सपेंस है 50,000. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट द एक्स्ट्रा 10,000 which I have, which is my expenditure, is definitely from my borrowings, right? तो यही borrowings fiscal deficit है. अब देखिए फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में पहले तो मीनिंग. फिस्कल डेफिसिट मींस टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर exceeding the total receipts other than borrowing, but revenue deficit only shows the axis of revenue expenditure over revenue receipts. Fiscal deficit measures the total borrowing requirement of government. Revenue deficit indicates the inability of government to cover up the revenue expenses. Now have a look on sources of financing fiscal deficit. Number one, government can borrow from internal as well as external sources. Number two, deficit financing, very important. जब गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो कर रही है तो उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहेंगे. ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आरबीआई से जाके बोरो कर रही है, न्यू करेंसी प्रिंट करने को कह रही है आरबीआई को, इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आएगा. तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, बट काफी बार हमें ये करना ही पड़ता है टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी. गवर्नमेंट के बजट में जब भी डेफिशिएंसी आती है तो have a look. Borrowings are considered as a better source as they do not increase the money supply, which is regarded as the main cause of inflation. On the other hand, deficit financing may lead to inflationary trends in the economy due to more money supply. ये कह रहे हैं if you will borrow from some other sources other than RBI, then that borrowing will be treated as a better part. क्योंकि अगर आप borrowing RBI से कर लेंगे, अगर आप deficit financing का concept use कर लेंगे, तो ये तो आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत harmful रहेगा, because this will create a situation of inflation in the economy. Inflationary spiral आ जाएगा. Okay, everyone. So we have completed up to this part, right? The first part was revenue deficit and the second part was fiscal deficit. Okay, everyone, I am ending the class over here. Tomorrow we will complete the chapter number 10 of macroeconomics. Have a nice day. Enjoy yourselves.